this is a method of variation of parameters for pi. Pi means you know particular integral ना, particular integral. पिछले बार जो just in the previous class we have seen that the solution of a differential equation, higher order linear differential equation is what? CF plus pi. So CF, you can find the CF by finding the roots of the auxiliary equations for the differential equation, and for finding pi you also know the how can we find the pi. Pi means 1 upon fd x. Okay, so here another method, the special method of variation of parameters. This is very important method because it is useful for application of differential equation of higher order, and generally second order differential equation को ही solve करते हैं. Okay, linear differential equation of order 2. ये method of variation of parameters is for finding pi. So there is a special formula, just you have to remember this formula. ये formula याद रखना है और particular integral निकालना है. CF निकालने का जो रूल है वो पिछला रूल जो है वही रूल है ना? हेलो, let d2 y upon dx square plus p1 dy upon dx plus, or pq, you can write also pq y equals to x. This is a differential equation with order. What is the order? Order second order differential equation. Here p and q, they are coefficients of derivative. Suppose यहाँ भी कोई coefficient होता तो उससे ना डिवाइड कर देते तो सिंगल एक कोफिशिएंट यहाँ होता, एक कोफिशिएंट यहाँ होता और x. सेकेंड ऑर्डर लिया है हमने, सेकेंड ऑर्डर. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, देन किस ऑर्डर का है ये? फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर, देन फर्स्ट ऑर्डर, देन नील ऑर्डर. नील ऑर्डर मीन्स जीरो ऑर्डर का मीन्स y, and this is coefficient, this is coefficient. Now p q x may be function of x or may not be function of x, that is may be constant also, where p q x are function of x or may be constants. ये जो राइट हैंड साइड में x लिखा है ये कांस्टेंट भी हो सकता है एंड वेरिएबल. व्हाट? फंक्शन ऑफ x. एंड p and q may be also function of x, variable coefficient, because up to now we are studying about what? Constant coefficient. So here second order differential equation, here p q may be constant and may also be variable. So generally we are considering coefficients are constant, differential equation with constant coefficients. Okay, so there are two special type of variable coefficient equation that they can be reduced to linear differential equation with constant coefficient. So just इसकी यूनिट के आगे का पार्ट है ना? तो this is method of variation of parameters. For that, suppose this is second order linear differential equation. Okay, then इसका क्या फाइंड करना है? हेलो, एनीवन टेल मी. मैंने अभी क्या बताया था कि इस मेथड से क्या फाइंड करेंगे हम? हेलो, पी निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा. ओके, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक स्पेशल फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन नहीं करना है अभी हमको, जस्ट रिमेंबर दैट फॉर्मूला. ओके, सो बट व्हाई इट्स नेम इज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स? पैरामीटर्स मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं उसमें जो कॉन्स्टेंट्स होता है. ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वी हैव टू कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन complementary function, and complementary function you can find taking right hand side 0, this auxiliary equation, and solving auxiliary equation you can get two roots, and corresponding to that roots you can write the CF. CF कैसे लिखा जाता है? CF
यू नो CF, अगर दो वैल्यू मिल गया तो दो रूट्स मिल गया तो C1 e to the power m1x प्लस C2 e to the power m2x इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर का है तो दो ही कांस्टेंट होना है, एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो क्या होता है C1 e to the power alpha x, C1 cos of beta x, यहाँ भी दो कांस्टेंट होता है, so there will be two constant ना, so its complementary function can be written as this. Then if CF equals to C1 y1 plus C2 y2, where y1 and y2 are function of x, functions of x, because जब CF लिखते हैं ना तो CF में एक कांस्टेंट होता है, साथ में या तो e to the power mx और cos beta x मीन्स फंक्शन ऑफ x। ये जो पार्ट है इस पार्ट को क्या नाम दिया, C1 के साथ वाला पार्ट का नाम है y1। y1 मीन्स इफ और CF is e to the power 2x प्लस C2 e to the power minus 3x, सब ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, ये y1, ये क्या हो जाएगा, ये y2, तो C1 y1 प्लस C2 y2। नाउ ये जो C1 C2 है आर्बिट्री कांस्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो आना ही है इस टाइप का फॉर्मेट, सो इसमें से C1 C2 आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, सो ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है दे आर पैरामीटर्स, वी आर ट्रीटिंग दे आर पैरामीटर्स। इस पैरामीटर में वेरिएशन देना है, वेरिएशन देने का मतलब होता है इसको वेरिएबल बनाना है, इसको वेरिएबल बना के पीआई को सपोज करते हैं, क्लियर है, इसी फॉर्मेट में। ये y1 y2 तो CF निकलने के बाद समझ में आता है कि y1 and y2 व्हाट आर द वैल्यू ऑफ y1 and y2, ओके, एंड C1 and C2 को क्या करते हैं इस मेथड में, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड में वेरिएबल बना देते हैं, एंड उस वेरिएबल की वैल्यू किसी कंडीशन के अलोंग फाइंड करना पड़ता है, एंड देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। मतलब ये C1 की जगह क्या लिख देते हैं, एक वेरिएबल फंक्शन ऑफ x ux एंड y1 प्लस vx y2, इस टाइप का पीआई सपोज कर, इस टाइप का क्या सपोज करते हैं, पीआई। सपोज ये CF है, ये अगर CF है तो C1 के प्लस पे हमने फंक्शन ऑफ x लिया u, C2 के प्लस पे फंक्शन ऑफ x लिया v, एंड u y1 प्लस v y2, ओके, सो ये हो गया पीआई। लेट अस सपोज दैट दिस इज पीआई एंड कंडीशनली इसको डिराइव करेंगे ना तो फॉर्मूला मिलेगा किसके लिए, u के लिए, u की वैल्यू क्या होना है, v की वैल्यू क्या होना है, वो u एंड v आया, यहाँ रख दिए, पीआई निकल गया, क्लियर। सो ये फॉर्मूला है, तो इसमें ना अभी हम क्या लिखने वाले हैं, पीआई। किसको देख के लिखते हैं, CF को देख के लिखते हैं। CF पहले फाइंड करना है, सपोज दिस इज CF एंड देन वी कैन राइट according to this method variation of parameters. Now just write PI on the basis of CF. If CF equal to this, then giving variation to arbitrary constant C1 and C2, we can write PI giving variation to arbitrary constant C1 and C2, we can write PI according to method of variation of parameters. Clear?
So वेरिएशन देने के बाद अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वी कैन राइट pi इक्वल्स टू क्या लिखना है, C1 की जगह u x, ux means function of x, y1 it is also function of x, then C2 के प्लस पे क्या लिखना है, vx and y2, this is pi. We can write pi equals to this, where u is given by, u and v are given by, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, where u equals to minus integration of y2 x upon w dx. You have to remember this formula, okay? u means function of x, ये y2 ऑलरेडी डिसाइड है पहले से, y2 या x राइट हैंड साइड x, नीचे w की वैल्यू भी लिखेंगे है ना, और Wronskian, इट इज कॉल्ड Wronskian ऑफ y1 एंड y2. ये u हो गया, where u equal to this and v equals to integration of y1x upon w dx. ये u and v की वैल्यू है. अगर pi इसको सपोज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यू कैन डिराइव दैट u equals to this and v equals to this and w also here w is equals to also write like this y1 y2. It is called of y1 and y2, and it is given by y1 y2 and y1 dash y2 dash. समझ में आया? देखो pi निकालना है, इसके लिए हमको u निकालना है, v निकालना है. u की वैल्यू ये होता है, v की वैल्यू ये होता है. u की वैल्यू निकालना है मींस एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. दिस इंटीग्रेशन वी हैव टू सॉल्व. यहाँ पर y2 पहले से मिला हुआ है, x ये दिया हुआ है, w ये निकालना है. दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. और डिटर्मिनेंट में क्या लिखा हुआ है, y1 एंड y2 जो पहले से डिसाइडेड है. y1 यहाँ होगा, y2 यहाँ होगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है. इसको सॉल्व करना है. जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू विल बी यूज्ड हियर. वो वैल्यू को यहाँ लिख देना है, x को लिख देना है, y2 को लिख देना है, इंटीग्रेट कर लेना है. सो u की वैल्यू आ जाएगा, सिमिलरली v की वैल्यू आ जाएगा. और दोनों वैल्यू को निकाल के यहाँ और यहाँ रखोगे तो pi मिल गया. सो दिस इज CF, दिस इज pi. सो कंप्लीट सॉल्यूशन यू कैन राइट CF plus pi. Okay? So complete solution is CF plus pi. You know, complete solution y equals to. हेलो, सबको दिख रहा है ना अच्छे से? क्यों बताओ? हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Visibility and sound, no problem na? Okay, so take this is first question. Now very important method in the examination na, by name the question is asked, the solve this differential equation by method of variation of parameters. syllabus देखे हो ना? syllabus में method of variation of parameters दिया हुआ होगा. उसके बाद Cauchy linear equation, Euler equation, Legendre equation ये सब दिया हुआ है. Cauchy linear equation and Legendre equation means अभी बताएंगे उसको. वो भी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट वाला इक्वेशन है दैट कैन बी रिड्यूस टू कांस्टेंट विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. तो कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है. और सिंपल मेथड है जो पहले हम लोगों ने किया है, CF निकाला, PI निकाला, वही सब करना है. बट दिस इज a special method. By this method you can solve questions. First of all, find CF. On the basis of this CF, write PI. And then U भी ये फॉर्मूला से निकालना है, फिर W वहाँ से निकालना है. ये निकाला, ये PI बन गया, तो CF plus PI, that is the solution. Okay, so in this question see here,
कांस्टेंट कोफिशिएंट इज गिवन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है जनरली, है ना. सो दिस इज गिवन इक्वेशन इज आल्सो व्हाट ऑफ ऑर्डर व्हाट सेकंड ऑर्डर मे बी थर्ड ऑर्डर आल्सो. थर्ड ऑर्डर में रॉन्स्कियन जो होता है वो 3/3 डिटरमिनेंट होता है, बट जनरली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आर यूज्ड एंड आल्सो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है ना सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड ही रहता है. ओके, and this is also important for application because application part is not now in your syllabus, but application part में ना इसका बहुत use है. Okay, so here just we have to solve this question. So first of all क्या find करना है बताओ, पहले क्या find करना है? Hello, CS complete solution. हाँ, CS not CF. First of all CF complementary function, then on the basis of we have to write PI according to method of variation of parameters, and then u v निकालना है, w निकालना है. एक क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, असाइनमेंट में क्वेश्चन दूंगा, करना है 8-10 क्वेश्चन है. नाउ हियर अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स टू सॉल्व d2y/dx² plus 4y equal to 4 sec² 2x. राइट हैंड साइड हैविंग फंक्शन ऑफ x, बट हियर कोफिशिएंट आर कांस्टेंट and very simple. Okay, so given equation can be written as, ये कैसे लिखेंगे? by in the symbol of operator symbol. So d square plus 4y equals to 4 sec² 2x. 4 sec² 2x. So first of all we have to find CF ना. So its auxiliary equation is, auxiliary equation क्या होगा? d² plus 4 equals to 0. After solving this, इसको सॉल्व करो, क्या होगा? d की वैल्यू क्या आना है? Tell me what is the value of d? प्लस माइनस 2i ना, -4 होगा ना. सो प्लस माइनस 2i प्लस माइनस 2i यही होगा ना. -4 का रूट, -4 का स्क्वायर रूट, सो i बनेगा ना 2i प्लस माइनस. सो दिस इज रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स. so therefore CF equals to क्या होगा? CF बताओ, CF कैसे क्या राइट करना है? e to the power अल्फा x, अल्फा तो 0 है तो 1 हो जाएगा. देन फर्स्ट कांस्टेंट C1 एंड क्या लिखना है यहाँ पर बताओ? cos 2x x and sin 2x. ओके, दिस इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स रूट्स ना. अगर कोई दूसरा रूट आता तो e to the power के फॉर्म में होता. सो नाउ वी हैव टू सपोज दिस इज y1, दिस इज y2. ये c1 और c2 के अलावा यहाँ पर c1 के साथ जो भी है वो y1 है, c2 के साथ जो भी आएगा वो y2. और ये c1 और c2 को जब pi लिखेंगे तो वहाँ u भी लिख देना है. ओके, सो implies CF equals to c1 y1 plus c2 y2, where y1 equals to cos 2x, y2 equals to sin 2x, and also here capital X is what? Also capital X equals to क्या लिखा है? 4 sec² 2x. ओके, ये दिख रहा है ना लास्ट वाला लाइन? क्यों? हेलो, यस सर. क्या लिखा है? x की वैल्यू देखो, इक्वेशन में x की वैल्यू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड x ना. सो x equals to 4 sec² 2x. सो दिस इज आवर y1 y2 x एंड w भी जरूरत पड़ता है ना, तो w निकालना है अभी. ओके, नाउ w equals to, w की वैल्यू क्या होता है?
y1 y2 एंड y1 डैश y2 डैश, रॉन्स्कियन बोलते हैं इसको, ये यूज करना है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश. Now this is equals to y1 means here see y1 cos 2x sin 2x, so this is cos 2x, this is sin 2x, and डेरिवेटिव ऑफ दिस y1 का डेरिवेटिव नीचे लिखना है यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस 2 sin 2x, here डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 cos 2x. Now anyone can say what is the value of this? क्या होगा वैल्यू बताओ. हेलो, you can solve this determinant ना. 2 over sir. 2 sir. 2 ना, गुड, वेरी गुड. 2 होना है बिकॉज डिटर्मिनेंट ना. सो यू नो डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ना कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 को बाहर कर लो. ये जो सेकंड कॉलम है इसमें रो है उसमें से 2 बाहर आएगा, cos स्क्वायर 2x, ये माइनस है तो प्लस sin स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, सो 2, दिस इज 2, सो w इक्वल्स टू 2. इसी टाइप से हर क्वेश्चन में आप w निकालेंगे तो सिंपल वैल्यू आएगा. मे बी आल्सो रिलेटेड टू x से रिलेटेड भी हो सकता है. यहाँ तो x हट गया, x मिला नहीं, कांस्टेंट आ गया, और जरूरी नहीं कि कांस्टेंट आए, x से रिलेटेड भी कुछ भी हो सकता है, बस इसको तो यूज करना है ना u भी निकालने के लिए. ओके, सो दिस ये निकाल लिए है ना. अब हमको क्या करना है, CF निकला हुआ है, ये PI निकालना है. PI के लिए क्या क्या जरूरत था, y1 y2 कैपिटल X एंड W, ये निकाल के रख दिए. नाउ according to method of variation of parameters, इस मेथड के अकॉर्डिंग ही हमने PI लिखते हैं CF देख के. सो अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स we can write PI equals to, PI की वैल्यू क्या होगा, PI C1 के जगह U लिखना है, A होगा y1 प्लस B y2, बस यही. where u equals to minus of integration y2 x upon w dx, and just write one time formula. Okay, so v equals to integration of y1 x upon w dx. okay, ये है, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, ये तो याद रहेगा, cos 2x sin 2x ना, and x is right hand side. So C. अब हमारा क्या काम बचा अभी, PI निकालना. उसके लिए U चाहिए और V चाहिए, इंटीग्रेशन है, ओनली इंटीग्रेशन यू हैव टू सॉल्व. सो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. क्लियर है. नाउ U equals to minus of integration y1. See here, U equals to y2 means what, y2 क्या था वहां पर, y2 sin 2x, sin 2x and capital X, right hand side see, 4 sec square 2x, 4 sec square 2x upon W equals to 2, so 2 dx. बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है. कौन सा फॉर्मूला लगाना है बताओ. हेलो, -2 हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, sin 2x sec square 2x, यू कैन राइट व्हाट, देखो ऊपर 4 है नीचे 2 है तो 2 कैंसिल हो गया, -2 बाहर हो गया, sin 2x into sec square 2x. sec square मींस क्या होता है, अभी इंटीग्रेशन करना है ना.
किस फॉर्मेट में लाना चाहिए? इधर देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का क्या होता है? sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x। तो यहाँ sec x tan x के फॉर्म में लाना है। एक sec को यहाँ रखो और एक sec को cos बनाओ, साइन के नीचे cos 10 sec 10। सो वी कैन राइट sec 2x tan 2x, राइट है ना? ये तो लिख सकते हैं ना इससे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा यहां पर? माइनस 2, हेलो, sec 2x upon 2, so this is equals to minus sec 2x। ओके, ये हो गया u की वैल्यू। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v, इसी प्रोसेस से v निकालना है। ओके, एंड v इक्वल्स टू, अब v की वैल्यू क्या होना है? v का फॉर्मूला वो लिखा हुआ, क्लियर? सो ये हो गया u नोट कर लो, u इक्वल टू माइनस, यहाँ पर u की वैल्यू आ गई, u इक्वल्स टू माइनस sec 2x। नाउ v निकालना है। v के लिए फॉर्मूला क्या है? y1 is what? cos 2x। ओके, y1 क्या था? cos था। सो y1 cos 2x इंटू x, कैपिटल x तो वही है, 4 sec स्क्वायर 2x अपॉन 2। सो इट्स दिस इंटीग्रेशन इज आल्सो वेरी सिंपल। क्या वैल्यू आएगा इसका? v इक्वल्स टू, नॉट माइनस है, प्लस साइन। सो दिस इज v, फॉर्मूला फॉर v ना, v के लिए ये फॉर्मूला है, ये वाला यूज करना है यहाँ पर। सो 1/2 नॉट 2, ये 2 हो गया। cos एंड sec क्या बचेगा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, सिंपल इंटीग्रेशन था ये। तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा? माइनस sin 2x, ये राइट ना? cos का इंटीग्रेशन, sin का cos नहीं, नो प्लस है, प्लस ही होना है ना? यस सर, यही तो होगा क्या? cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का sin 2x होता है। हाँ, हेलो, अरे हाँ गुड गुड, हाँ, देखो गलत हो गया था ना अभी, वही ध्यान देना है ना। sec 2x रहेगा यहाँ पर, sec 2x, गुड। हाँ, इसका क्या होता है फॉर्मूला? ये 2 तो 1/2 तो आना है, sec का तो पता है क्या होता है? log sec x plus tan x ना, log sec 2x plus tan 2x by 2, वो 2 के यहाँ लिख दिया। So 2/2 1, so finally value is log sec 2x plus tan 2x। क्लियर? ये आ गया v की वैल्यू। दिस इज u, दिस इज v, सो यू कैन राइट pi। यहाँ पर u लिख देना है, यहाँ y1 लिख देना है, यहाँ v लिख देना है, यहाँ पर y2 लिख देना है, वो u and v निकालना है। सो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल है कि टिपिकल है, बट सिंपली रहता है, जनरली सिंपल रहता है। ओके, पहले CF निकालना है, फिर pi लिख लेना है, फिर u v की वैल्यू निकालना है। नाउ वी कैन राइट इट्स आंसर एज, आंसर लिखना है अभी, है ना? सो इसमें क्या लिखना है अभी? फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड ना। सो बाय दिस इज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। सो फाइनली u v आ गया। सो वी कैन राइट pi इक्वल्स टू pi क्या हो गया? u की वैल्यू है ये माइनस sec 2x इंटू y1 क्या था? cos 2x, cos 2x प्लस v मीन्स दिस log sec 2x प्लस tan 2x इंटू दिस इज इंटू व्हाट? क्या होगा बताओ? इंटू में और क्या बचा अभी? sin 2x, this of
इंटू साइन 2x, क्योंकि ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है ना वो लॉन्ग होता है इसमें, क्योंकि CF PI दोनों को लिखना पड़ता है ना। तो फाइनली द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन होकर सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, -1। ओके, सो यू कैन राइट ऑल्सो, 2-3 स्टेप लिखना है इसमें, -1 एंड प्लस sin 2x log of sec 2x plus tan 2x. This is PI. Hence, complete solution is given by y equals to CF plus PI. हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन अगर निकालना है तो ये होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। CF निकालना रूल पहले से पता है, अब PI निकालने के रूल के बारे में एक 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़े थे पिछले क्लास में, और वही उसी में से एक मेथड आया, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एप्लीकेशन में समझ में आता है। सो CF और PI को यहाँ प्लस कर देना है, दैट इज फाइनल सॉल्यूशन, इस टाइप से लिखना है कंप्लीटली, यू हैव टू राइट। यहाँ क्या था, कांस्टेंट C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। अब ये नहीं सोचना है कि C1 C2 को तो यूं ही लिख दिया था, वो तो PI निकालने का प्रोसेस था। CF तो ये जो है वो है, बिकॉज इसमें 2 कांस्टेंट होना है, सेकंड ऑर्डर है तो 2 कांस्टेंट होना है, ये CF है, और PI जो आया वो लिख देना है, -1 प्लस sin 2x log of sec 2x plus tan 2x. This is final solution. Okay, so this is the method of variation of parameters. By this method we can find PI. CF से बनाते हैं PI. क्लियर है ये मेथड? हेलो, ओके। इसके बाद तुम ही लोग बताओ सिलेबस में क्या पॉइंट रखा है, किसी ने देखा है सिलेबस अच्छे से? हेलो, देखो जो अभी इसमें आया होगा ना, टॉपिक आया होगा एक, क्या लिखा हूं, कौन सा टॉपिक है? एनीवन प्लीज रीड इट। हेलो, इसको रीड करो। कुछ लोग एक्टिव रहते हो, कुछ ही लोग रीड करते हो, बताओ, रीड करके बताओ। LDE मीन्स व्हाट? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन विथ, रीड करो ना, पूरा रीड करो, क्या लिखा है स्क्रीन में, दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, यस, हेलो, एक जन पढ़ो ना, कोई ना कोई। हेलो, उसको रीड करोगे तब समझ में आएगा ना कि आगे का टॉपिक क्या है। Linear differential equation with variable coefficient reducible to linear differential equation with constant coefficient. हाँ, मतलब अभी जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला होगा, जिसको हम रिड्यूस करेंगे, क्या किस में बन जाएगा? कांस्टेंट वाले में बन जाएगा, बिकॉज वेरिएबल कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा टफ रहता है। सो यह स्पेशल टू टाइप्स ऑफ variable coefficient differential equation is there that can be reduced to linear differential equation with constant coefficient। जैसे constant coefficient बनेगा वैसे पुराना मेथड लग जाएगा, CF निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, CF निकालो, CF आया, PI आया, दोनों को प्लस किया, सॉल्यूशन हो गया। बट वेरिएबल कोएफिशिएंट के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है ना, तो यहाँ पर 2 इक्वेशन है, सिलेबस में दिया होगा। क्या है नेक्स्ट टॉपिक पता है? First is Cauchy's linear equation, Cauchy's linear equation, okay, Cauchy's linear equation, and second
अनदर मेथड, ये जो दूसरा इक्वेशन है ना ये होता है, एक और सिलेबस में ये भी लिखा होगा, लीजेंड्रेस लीनियर इक्वेशन। लीजेंड्रेस लीनियर इक्वेशन सेकेंड। और एक इक्वेशन का नाम है सिलेबस में जो अभी तक नहीं बताया, वो क्या था बताओ? पिछले यूनिट में भी था, बोलो वो क्या है? तो समझ में था ये इक्वेशन किसको क्या बोलते हैं? ये तो कॉची लीनियर इक्वेशन होना है, एक इसी टाइप का स्पेशल टाइप का वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन है। सिमिलरली ये जो लेजेंडरी लीनियर इक्वेशन ये भी एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन है। दे कैन बी रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब कैसे ही रिड्यूस हुआ वैसे ही पुराने मेथड से सॉल्व किया, सॉल्यूशन आ गया। ओके, सो ये लेजेंडरी हो गया, पहले हो गया कॉची लेजेंडरी, एंड देन एक इक्वेशन का नाम है, किसी को याद है बताओ क्या होता है? सिलेबस में है। उसके बाद तो दो टॉपिक बचता है, बेसेल्स फंक्शन एंड लीजेंडरी फंक्शन, लीजेंडरी पॉलिनोमियल। बस इसके बाद वो एक एक बहुत लेंदी टॉपिक है, बट मेन प्रॉपर्टी को पढ़ना है, बेसेल्स का और लीजेंडरी पॉलिनोमियल का। वो नेक्स्ट 2 टॉपिक होगा। बट ये जो अभी है ना लीनियर इक्वेशन चल रहा है, इसमें कॉची लीनियर इक्वेशन और लीजेंडरी लीनियर इक्वेशन, व्हाट आर द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है वो, किस टाइप का इक्वेशन है और कौन सा मेथड लगाना है, ये तब देखने से समझ में आएगा। एक और है ना सिलेबस में, क्या है? यूलर इक्वेशन है कि नहीं बताओ? है ना, यूलर इक्वेशन कहीं लिखा है, कॉची यूलर इक्वेशन, कभी कभी कॉची लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, कॉची यूलर इक्वेशन भी बोलते हैं। इसी का एक पार्ट है वो। अभी एक ये भी है कहीं पर लिखा हुआ पढ़े होंगे, यूलर इक्वेशन, यूलर इक्वेशन। बट यूलर इक्वेशन जो है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट में लिखोगे ना यूलर इक्वेशन तो सीधा वही दिखाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा जो पढ़ रहे हैं। बट हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो ये यूलर इक्वेशन है ना, ये भी यही है, कॉची लीनियर इक्वेशन को ही यूलर इक्वेशन बोलते हैं, बट सेकेंड ऑर्डर का। बिकॉज कॉची लीनियर इक्वेशन तो जनरल ऑर्डर का भी लिखेंगे हम, उसको अगर सेकेंड ऑर्डर तक लेते हैं और राइट हैंड साइड 0 लेते हैं, उसको बोलते हैं यूलर इक्वेशन। क्लियर है? ये यूलर इक्वेशन एकदम सिंपल है, जैसे इसको सॉल्व करना वैसे इसको भी सॉल्व करना है। बट ये एकदम सिंपल इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन मीन्स सेकेंड ऑर्डर लीनियर वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला है ये भी, बिकॉज ये वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला है, इसी का सेकेंड ऑर्डर तक अगर लेंगे तो उसको यूलर इक्वेशन बोलते हैं। और राइट साइड को 0 लेना है तब यूलर इक्वेशन नाम है। राइट साइड 0 नहीं लेंगे तो कॉची लीनियर इक्वेशन जनरली चलेगा, और उसको फिर रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं तो इसको भी रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं, मेथड तो सेम रहेगा। ओके, so here Cauchy's linear equation and legendary linear equation, they are a special type of variable coefficient equation called also homogeneous equation, legendary's homogeneous linear equation, Cauchy's homogeneous linear equation also called। ये स्पेशल टाइप का वेरिएबल कोएफिशिएंट है। वेरिएबल कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर डेरिवेटिव के सामने कोएफिशिएंट को वेरिएबल दिया जाए, कांस्टेंट न ले, तो वेरिएबल वो भी स्पेशल टाइप का वेरिएबल लेना है, एक फॉर्मेट में लेना है, इसीलिए स्पेशल टाइप का वेरिएबल कोएफिशिएंट है। सो सपोज nth ऑर्डर इक्वेशन लिखता हूँ, कॉची लीनियर इक्वेशन nth ऑर्डर लिखता हूँ, तो फर्स्ट हायर ऑर्डर क्या होगा? nth ऑर्डर। सो हायर ऑर्डर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? dn y upon dx n, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो सेकेंड ऑर्डर लेते हैं तो क्या होता है? पहला सेकेंड ऑर्डर, देन फर्स्ट ऑर्डर, देन नील ऑर्डर। नील ऑर्डर मीन्स ओनली y, कोई ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। सेकंड लेंगे तो 3 टर्म्स होता है, और nth ऑर्डर लेंगे तो n+1 टर्म्स होगा। ये पहले nth ऑर्डर होगा, इससे कम होगा, फिर कम ऐसे जाता है। सो दिस प्लस फिर क्या होना है यहाँ पर? n-1 y upon dx n-1, इससे कम होगा डेरिवेटिव, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या होना है? नो डेरिवेटिव, तो लास्ट वाला तो ये ऐसे ही रहेगा ना, y एंड राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, nth ऑर्डर कॉची's लीनियर इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इक्वेशन, nth ऑर्डर। अब इस इक्वेशन के कॉम्बिनेशन है, पूरे ऑर्डर का डेरिवेटिव्स रहना है। ये बताओ इसके पहले यहाँ पर क्या रहेगा? कोई ना कोई इक्वेशन लिखना है अभी।
ये तो पूरा लिखा नहीं है, अभी इसमें कोफिशिएंट वगैरह लिखना है, बट nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसमें n, फिर n-1, फिर n-2 एंड अप टू लास्ट तक जाते हैं, लास्ट में 0 तक जाते हैं, मतलब कोई डेरिवेटिव नहीं y। इसके पहले वाले यहाँ पर क्या होगा? हेलो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ओके, dy अपॉन dx। और इसके पहले वाला में क्या आएगा? सेकेंड ऑर्डर, एक एक करके माइनस होता गया ना, कोई डेरिवेटिव नहीं, 0 ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव, पूरे डेरिवेटिव है। एंड डेरिवेटिव के सामने कोफिशिएंट्स हो सकता है, एंड कोफिशिएंट में भी कांस्टेंट में भी वेरिएबल, बट वेरिएबल कोफिशिएंट हमको लेना है। सो यहाँ पर स्पेशल टाइप का वेरिएबल कोफिशिएंट दिस, ये जो x पावर n है ना, तो यहाँ पर जो x रहेगा उसका पावर n इस टाइप का लेना है, x पावर n है, x पावर n, यहाँ x पावर n-1, तो यहाँ भी x पावर n-1। सिमिलरली यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, इस टाइप का कोफिशिएंट आएगा, ऐसा कोफिशिएंट, ऐसा कोफिशिएंट और ऐसा कोफिशिएंट, जो यहाँ है वो बना ये वेरिएबल कोफिशिएंट हो गया। क्लियर है? यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए पावर 0 में है, तो यहाँ पर 0 में पावर है, 1 है, सो कुछ नहीं। साथ में यहाँ कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट हर एक टर्म में क्या हो सकता है? कांस्टेंट। तो फर्स्ट वाले टर्म का कांस्टेंट ऑलवेज 1 रखा जाता है, सो इसलिए अगर कांस्टेंट कोई होता भी तो उस कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, तो हर जगह डिवाइड हो जाता, तो पहले वाले पार्ट का कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। सपोज दिस इज नेम k1 एंड देन सेकंड कांस्टेंट क्या आ जाएगा? k2 एंड सो ऑन अप टू यहाँ पर क्या आएगा? kn, यहाँ पर क्या आना है? kn-1। ये कांस्टेंट का मतलब नेम k1, k2, k3, k4 अप टू kn, n कांस्टेंट, बिकॉज टर्म्स तो n+1 है। सेकंड ऑर्डर में 3 टर्म्स होता है, थर्ड ऑर्डर में 4 टर्म्स होता है, तो यहाँ पर भी nth ऑर्डर है तो n+1 टर्म्स होगा, पर एक में कांस्टेंट नहीं है तो k1 से लिखना चालू करेंगे तो kn पे जाकर पहुंचेगा। ये सब कांस्टेंट है, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट, बट वेरिएबल कोफिशिएंट भी है यहाँ पर, ये है, ये है, ये है, ये फॉर्मेट है। दिस इज नोन एज, दिस फॉर्मेट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज Cauchy's homogeneous linear equation, also Cauchy's linear equation of nth order, where k1, k2, kn are constant and x is a function of x। ये जो राइट हैंड साइड का x है वो फंक्शन ऑफ x है, और ये k1, k2 ये सब कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल कोफिशिएंट वो तो दिख ही रहा है। इट कैन बी रिड्यूस्ड टू, बिल्कुल सेम इसी के पैटर्न में ना ये बना हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो समझ में आ जाएगा। कॉसिस और लीजेंड्री सेम है। कॉसिस ए पर्टिकुलर केस ऑफ लीजेंड्री। लीजेंड्री में क्या करते हैं, बस एक जो x लिखा है ना वहां पर थोड़ा सा चेंजेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को समझ लेते हैं, उसको तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, सो यहां पर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर तक के टर्म को अगर पूरा ले ले और राइट साइड को 0 ले ले तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, यूलर इक्वेशन। दैट मींस यूलर इक्वेशन का क्या फॉर्मेट होगा। हेलो, देखो यूलर इक्वेशन किसको बोल रहे हैं, सेकंड ऑर्डर तक लो, इसी टाइप का सेकेंड ऑर्डर तक का डिफरेंशियल इक्वेशन लेना है, राइट हैंड साइड में 0 लेना है, उसको यूलर इक्वेशन बोलेंगे, ओनली यूलर इक्वेशन, आल्सो कॉल्ड कॉची लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, कॉल्ड यूलर इक्वेशन। अगर राइट हैंड साइड 0 है तो कैसे लिखना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर मींस d2y अपॉन dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर और इसी का लिखना है। तो यहां पर क्या होगा, हेलो, देखो सेकेंड ऑर्डर टाइप समझ लिया जाए, पहले तीनों इक्वेशन होता क्या है, सबके लिए सॉल्व करने का मेथड सेम है। यूलर इक्वेशन क्या होता है, इसी का सेकेंड ऑर्डर लेना है, सेकेंड ऑर्डर वाला तक का टर्म लिख रहा हूं,
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड विदाउट डेरिवेटिव, ये रहेगा राइट हैंड साइड में जीरो रहेगा और यहाँ पर प्लस साइन लगा है, ये दोनों में प्लस लगा है। अब क्या होना है बताओ, तुम ही लोग बताओ, यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं? हेलो हेलो, एनीवन? सब लोग लाइव हो ना भाई? हेलो, Yes, sir. हाँ बोलो, यहाँ क्या लिखना चाहिए? यही इक्वेशन को लिख रहा हूं सेकेंड ऑर्डर का, इसका फॉर्मेट देखो, K2, sir. यहाँ पर क्या लिखो? x K2. x स्क्वायर, गुड, x स्क्वायर होना है ना, यहाँ पर x स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या होगा? x होगा, x स्क्वायर x x, और ये यहाँ पर कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखना है, a लिख दिया, यहाँ पर एक कांस्टेंट लिख दिया b, और राइट हैंड साइड बताया था हमने जीरो लेना है। तब ये जो स्पेशल टाइप का इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? यूलर इक्वेशन। क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir. हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर है, x है, x है, x है, ये b कांस्टेंट है और ये राइट हैंड साइड जीरो है, दैट दिस इज कॉल्ड यूलर्स इक्वेशन। अब ये जब हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व कर लेंगे तो इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे मींस राइट हैंड साइड हैविंग सम फंक्शन, यहाँ तो राइट हैंड साइड में फंक्शन ही नहीं है, राइट हैंड साइड में फंक्शन नहीं है मतलब केवल CF निकालो, खत्म। बट उसके पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। ये तो पर्टिकुलर के जब तो जनरल वाला देख रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट हो जाता है कि एक वेरिएबल कोएफिशिएंट खत्म हो जाता है तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ जाता है, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट से जो रूल है वो पहले जो पढ़े हैं उसी को यूज करना है। क्लियर है? एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है इसमें, x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है इसको एक अदर वेरिएबल में सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसी टाइप का यहाँ पर करना है। ओके, सो यूलर इक्वेशन क्लियर है ना? यूलर इक्वेशन क्या है? दिस इज यूलर इक्वेशन, Yes, sir. कॉची लीनियर इक्वेशन और यूलर इक्वेशन। ओके, नाउ दिस इज जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है ऊपर। अब लीजेंडरी इक्वेशन को भी बताऊंगा, ये बिल्कुल इसी टाइप का है एकदम, है ना? सो पहले इक्वेशन समझ में आ जाए, उसके बाद सॉल्यूशन करना है, एक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इसी का समझ में आ जाएगा, इसी का करोगे तो लीजेंडरी का भी उसी टाइप का होता है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसमें हमको तो पहले कन्वर्ट करना है कांस्टेंट कोएफिशिएंट में एंड देन सॉल्व करना है। कन्वर्ट होता कैसे है? कन्वर्ट होने का मीनिंग ये है जो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स रिमूव हो जाए। और वेरिएबल कोएफिशिएंट रिमूव कैसे होगा? इट कैन बी रिड्यूस्ड टू linear differential equation with constant coefficient, because इसी को तो सॉल्व करना जानते हैं हम पहले, CF plus PL, constant coefficient। by substituting x equals to e to the power t, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मींस x के जगह पे हम e to the power t लिख रहे हैं, t इज वेरिएबल, x को t वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, बट दिस बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? x equals to e to the power t। अब x इक्वल्स टू e टू द पावर t रखने के बाद पूरे डेरिवेटिव्स ये सब x dy by dx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर d2 y by dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एंड सो ऑन निकालना पड़ेगा। निकाल के फिर इसमें रखना है, जैसे इसमें रख देंगे और x के जगह पे ये रखना है, जैसे रखेंगे ना तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो केवल एक चीज देखते हैं और बाकी डायरेक्ट लिखना है इसमें। ओके, सो टेल मी ये क्या होगा? t इक्वल्स टू, किसी को पता है? ये x इक्वल टू e टू द पावर t है, तो t क्या, t इक्वल टू क्या होगा? log x ना? हेलो, x इक्वल टू e टू द पावर t है तो दोनों तरफ log ले लो, तो log x इक्वल टू log e टू द पावर t, t इक्वल टू log x। अगर ये सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं तो
x इक्वल टू टू पर t, तो t इक्वल टू log x और dt by dx इक्वल टू, एक बार डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, dt by dx इक्वल टू 1 by x। अपना टारगेट क्या रहेगा, इस टाइप का कॉम्बिनेशन, ये x dy by dx, x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, ये वेरिएबल कोएफिशिएंट खत्म हो जाए। ओके, ये है। इसके बाद देयरफॉर dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू निकालने दे, dy by dx की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये जो x है और t में चेंज हो रहा है, क्लियर है। तो जैसे x की जगह पे e टू द पावर t यहाँ लिखेंगे तो y इज फंक्शन ऑफ x, और वो x के प्लस पे जैसे e टू द पावर t लिखोगे तो y इज फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पर ये dy by dx है, कैन बी रिटन एज dy अपॉन dt by dx। ये रूल पता है सबको? हेलो, Yes, sir. पता है ना, ये तो है, चेन रूल होता है ना, dy by dt by dx, और dt by dx देखो, dt by dx की वैल्यू 1 by x है, ये 1 by x है, सो 1 by x d by dt y, 1 by x dy, where d equals to d by dt। अब जो हम लोग नोटेशन यूज कर रहे थे, कैपिटल D इक्वल्स टू d by dx, अब यहाँ पर है ना, ये जो d by dt था, d by dt, इस d by dt को ही लिख दिया हूँ d, कैपिटल D। सो ये dy, ये d by d मीन्स d by dt, क्लियर। सो सी, हमको ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन चाहिए था। अब देखो ये x जो है, इसको इधर इंटू करोगे तो क्या मिलेगा, x dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy, ये मिला ना। हेलो, Yes, sir. अब ध्यान देना यहाँ पर, ये देखो ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ x dy by dx ये वेरिएबल कोएफिशिएंट था, जब इसको हम क्या लिख दिया, dy, इसमें अब कोएफिशिएंट वेरिएबल नहीं है, ये dy dt है, तो मीन्स इसके जगह पे dy लिख देना है यहाँ पर, ये तो वेरिएबल कोएफिशिएंट खत्म हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का कॉम्बिनेशन जो है उसको निकाल सकते हैं। तो यू हैव टू राइट ओनली, अगर सेकंड ऑर्डर तक है तो सेकंड और थर्ड तक, मैक्सिमम थर्ड जाता है बट जनरली सेकंड रहता है। सिमिलरली we can get, just write it, similarly we can get x square d2y upon dx square equals to d minus 1y, ये मिलेगा। जैसे इसके लिए मिला ना dy, जब इसके लिए भी हम निकालेंगे ना, अभी इसी टाइप का कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। यहाँ पर d मीन्स dy dt, सो d minus 1y, यहाँ भी देखो कोएफिशिएंट खत्म, वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये जो सेकंड ऑर्डर वाला भी यहाँ पर रख देंगे ना तो वेरिएबल कोएफिशिएंट हट जाएगा। एक्स क्यू के साथ भी निकालेंगे तो ये आएगा d, यू कैन राइट डायरेक्ट d minus 1 d minus 2 y। अब देखो ये फर्स्ट टाइम में d minus 0 था, सेकंड टाइम में d minus 1 तक था, थर्ड टाइम में d minus 2 तक है, d minus 1 d minus 2 y। यहाँ पे ये थर्ड वाला जो है वेरिएबल कोएफिशिएंट, इसके जगह जैसी वैल्यू रखोगे तो विदाउट कोएफिशिएंट, विदाउट वेरिएबल कोएफिशिएंट हो जाएगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ जाएगा। क्लियर है। सो ये वाला जब भी ये सब्स्टिट्यूशन इसमें कर देंगे ना, यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, equation 1, this is equation 1 will be reduced to linear differential equation with constant coefficient। हुआ, क्लियर हुआ? हेलो, सब लोग ध्यान दो। हेलो, ये अभी क्या हुआ, किस में चेंज हुआ, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज हो जाएगा इक्वेशन। चेंज होगा तो फिर सॉल्व करना है, फिर वो पुराने मेथड से। ओके,
सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। और एक चीज और है, यहीं पर देख लेते हैं। यूलर इक्वेशन भी देख चुके हैं और कॉची लीनियर इक्वेशन तो अभी ये है, इसी का एक पार्ट था यूलर इक्वेशन। एंड लीजेंड्री इक्वेशन भी देख लेते हैं। देखो इसी टाइप का बिल्कुल जैसे यहाँ पर है ना, ये जो प्रोसेस है, हर एक क्वेश्चन में हमको सॉल्व करते समय ये लिखना पड़ता है। यहाँ से कहाँ से, गिवन इक्वेशन इज कॉची लीनियर इक्वेशन, देन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक लिखना ही पड़ेगा। सेकेंड और थर्ड ऑर्डर की डेरिवेटिव ये पूरा हर क्वेश्चन में लिखना है। फिर सब्स्टिट्यूट करते ही वो बन जाएगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लीजेंड्री इक्वेशन लिख रहा हूं अभी, लीजेंड्री इक्वेशन। सी डिफरेंस क्या आ रहा है ये ध्यान देना। लीजेंड्री इक्वेशन में क्या होता है, बिल्कुल सेम चीज है और थोड़ा सा अंतर है इसमें। सेकेंड लीजेंड्रीज इक्वेशन, लीजेंड्रीज लीनियर इक्वेशन। लीजेंड्रीज लीनियर इक्वेशन में सी हियर, ये जो कॉची लीनियर इक्वेशन था इसमें यहाँ देखो, यहाँ x टू द पावर n है, यहाँ x पावर n है, यहाँ पर x पावर n माइनस 1 है, यहाँ पर x है। ये जो कॉफिशिएंट है, दिस कॉफिशिएंट, ये ये जो x है, इस जगह पर एक लीनियर फैक्टर लिखना है, एक लीनियर फैक्टर, जस्ट जनरल लीनियर फैक्टर। बताओ लीनियर फैक्टर क्या होता है, एक लीनियर फैक्टर बताओ एनीवन। तब तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके हेलो बताओ। लीनियर फैक्टर पता है? हेलो क्वाड्रेटिक फैक्टर पता है? क्वाड्रेटिक फैक्टर, यू नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यस सर। क्या होता है बताओ? यस सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी जनरल वाला। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ ये तो नॉट इक्वल टू जीरो, फैक्टर बता रहा हूँ, केवल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर। नो, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो सेकेंड डिग्री फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर। लीनियर फैक्टर 1 डिग्री का एक फैक्टर बताओ जनरल। x प्लस 2 ax प्लस b, ये जनरल है ना, जनरल फैक्टर हो गया ना। केवल x का होगा, जब a को 1 ले लो b को 0 ले लो तो x हो जाएगा। x इज आल्सो लीनियर फैक्टर। यार a उससे अगर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0, x प्लस 2 लिखो, x प्लस 2, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, 3x प्लस 2 लिखो, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2, लीनियर फैक्टर। सो हमको ना इस जगह पे लीनियर फैक्टर लिखना है, जनरल लीनियर फैक्टर, जनरल लीनियर फैक्टर। मतलब यहां क्या लिखना है, सपोज लिख देता हूं a x प्लस b, x के जगह पे पावर n। सिमिलरली यहां भी वही लिखना है। मतलब ये जो कॉफिशिएंट था ना, यहां पर हमको ax प्लस b एक लीनियर फैक्टर लिखना है, सेम टाइप का लीनियर फैक्टर। यहां यहां भी क्या आना है, ये n माइनस 1 ax प्लस b। क्लियर हुआ? देखो कॉची लीनियर इक्वेशन और लीजेंड्री इक्वेशन में यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। अब समझ में आया कॉची लीनियर इक्वेशन क्या है और लीजेंड्री इक्वेशन क्या है? हेलो यस सर। केवल वो जो x था उसके जगह पे लीनियर फैक्टर लिखा। अब देखो कॉची लीनियर इक्वेशन में यहाँ x था, x को हमने क्या लिया था e टू द पावर t, वो x नहीं। अब अगर लीजेंड्री इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो यहां पर क्या होना चाहिए, इस पूरे को ax प्लस b इक्वल्स टू लेना है e टू द पावर t। क्लियर है? बस इतने डिफरेंस है। ये लेने से क्या होना है, आगे क्या चेंजेस आएगा, t इक्वल टू लॉग ax प्लस b, यहां पर आ जाएगा log ax प्लस b। क्या आ जाएगा यहां पर, log ax प्लस b। यहां से अगर डिफरेंस करोगे, डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, क्या मिलेगा यहां पर, क्या डिफरेंस आएगा, dt बाई dx इक्वल्स टू, क्या डिफरेंस आएगा वहां पर बताओ। यहां पर क्या आना है, वहां पर डिफरेंस करेंगे तो
t इक्वल टू लॉग एक्स प्लस बी है ना, अगर डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये? हेलो, आ रहा 1 मिनट है। हाँ हेलो, क्या होगा? हेलो, क्या लिखना है बताओ? अब 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी और ए से डिवाइड भी होना है, दैट मीन्स 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, यही होना है ना? लॉग एक्स प्लस बी का 1 अपॉन एक्स प्लस बी एंड एक्स का कॉफिशिएंट से डिवाइड भी होना है। सो 1 अपॉन एक्स प्लस बी, क्लियर है? अब यहां से क्या हो जाता है, केवल चेंजेस क्या हो जाता है यहां पर, सी हियर, चेंजेस क्या हो जाएगा, ये जो पहले वैल्यू लिखते थे ना हम लोग, उस वैल्यू में डिफरेंस ये आएगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा फिर, एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स, और पहले यहां पर x था और यहां पर dy था, अब यहां पर एक e आ जाएगा, बस एक यहां पर ये आ जाएगा, पहले dy था, एक ये आएगा, एक 1 टाइम्स है तो 1 ये आएगा। सेकेंडली अगर ax प्लस बी स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर वाले के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा तुम लोग बताओ? पहले वाले में एक बार था, एक ये आया था, dy पहले आता था और अभी इसमें 2 बार है तो a स्क्वायर आएगा और d माइनस 1 y एंड सो ऑन। फिर ये वाला सब्स्टिट्यूशन करोगे तो फिर से ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो समझ में आया रिडक्शन? हेलो, यस सर, रिडक्शन समझ में आ गया ना? क्योंकि ये लेजेंडरी इक्वेशन लोगे तो सिंपल x की जगह पे ax प्लस बी आएगा। अगर ax प्लस बी है तो ये जो कोफिशिएंट है, अगर स्क्वायर है तो यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, बस इतने डिफरेंस है। पहले क्या आता था, dd माइनस 1 आता था y, एक a स्क्वायर आ जाएगा, और सिंगल पावर में a आ जाएगा, क्यूबिक होगा तो यहाँ a क्यूब आ जाएगा। ओके, बाय दिस सब्स्टिट्यूशन वी कैन गेट ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, सो एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे बस, उसके बाद क्लास खत्म होगा। ठीक है, सब लोग रेडी हो ना? हेलो, देखो 1 आवर हुआ है, रेडी तो रहना भी है ना? ओके, सो क्यों, बिकॉज ये कॉची लीनियर इक्वेशन बोलो, लेजेंडरी इक्वेशन बोलो, ओनली यूलर इक्वेशन बोलो, सबके लिए सेम मेथड है। सो एक कॉची लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कॉची में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर केवल x रहेगा, अगर लेजेंडरी सॉल्व करोगे तो यहाँ x प्लस बी रहेगा, साथ में केवल a आएगा, यहाँ एक a यहाँ इंक्लूड करना है, एक a स्क्वायर यहाँ इंक्लूड करना है, बाकी तो कॉची में जो होना वही। ओके, सो टेक ये क्वेश्चन सी, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना सब इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन 2 इज दिस। ओके, सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, सब लोग तैयार हो ना भाई? ये देखो लॉन्ग थोड़ा सा पी आई निकालने में, क्योंकि कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट होने के बाद पी आई निकालने में थोड़ा टाइम लगना है इसमें, बट सिंपल है, जल्दी हो जाएगा। 15 to 20 मिनट लगना है। ऑल आर रेडी ना? हेलो, यस सर, ओके, यस सर, बिकॉज पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, फिर इधर उधर भाग जाते हो, फिर गड़बड़ हो जाता है फिर, है ना? सो सी नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस फॉर्मेट का इक्वेशन है, टेल मी, कौन सा इक्वेशन है? नो नो, किस, इक्वल टू log ax plus b को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by a नीचे थोड़ी आएगा, ऊपर आएगा, a ऊपर रहता है। अरे हाँ, ये ऊपर आएगा, ठीक ठीक, यहाँ पर ये ऊपर आएगा ना? हाँ, ये ऊपर आएगा तभी तो ये इधर रहेगा ना, ठीक तो है, ये ऊपर रहेगा तो ही इसके साथ रहेगा। गुड,
वहां पर ऐसे इंटीग्रेशन के में नीचे जाता है ना, यस, यहाँ पर इंटीग्रेशन में नीचे जाता है, हाँ ठीक ठीक, ये ऊपर रहेगा, करेक्ट। वो जो dt बाई dx है वहां पर रखना है, तो ये 1/ax प्लस बी रहेगा, तो ये x प्लस बी इधर आएगा और ये ऊपर ही रहेगा, ये के साथ रहेगा, राइट। 1 बाई ये लिखा था वो रॉन्ग था ना, ये लिखना है, इनटू में लिखना है, ओके। नाउ सी ये दिस क्वेश्चन इज व्हाट, कौन सा फॉर्मेट है, कॉची लीनियर की लीजेंडरी है कि यूलर है, कौन सा इक्वेशन बोलोगे? तीन इक्वेशन डिस्कस किए ना हम लोग, Cauchy linear sir. कौन सा इक्वेशन है? Cauchy linear. कॉची लीनियर इक्वेशन, कॉची वाला है क्योंकि यहाँ पर x प्लस बी टाइप का तो नहीं है, ओनली x वाला है, सेकेंड ऑर्डर भी है, राइट हैंड साइड हैविंग सम फंक्शन, तो यूलर भी नहीं है, कॉची लीनियर इक्वेशन है, कॉची होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। सो इट कैन बी रिड्यूस्ड टू कॉस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूशन क्या होना है? हेलो, अभी समझा के आया ना मेथड, सब्स्टिट्यूशन क्या करना है? हेलो, हमको क्या करना है अभी? ये दिस इज व्हाट, Cauchy's linear equation. We have to reduce it to linear differential equation with constant coefficient. For that, substitution will be what? Hello, बताओ। Given equation is ये Cauchy's linear equation, given equation is a Cauchy's linear equation. So let क्या करो सब्स्टिट्यूशन, हेलो टेल मी सब्स्टिट्यूशन बताओ जल्दी। कॉसी में क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन? x equal to e to the power t ना, so let x equals to e to the power t implies t equals to log x, one times you have to write this ना, dt by dx 1 by x implies, एक बार लिखना है चीज को, सिमिलरली कर देना है, therefore dy by dx equals to क्या लिखना है? dy upon dt into dt by dx and 1 by x यूज करना है इसको, and dy upon dt equals to 1 by x dy, where d equals to b by dt. ये one time you have to write. Also we can get, क्योंकि ये दो बार है ना, डबल भी चाहिए हमको, वो भी लिख देना है। Also we can get x square d2y upon dx square, क्या होता है इसकी वैल्यू? अभी बताया था, बताओ क्या लिखूं? हेलो, टेल मी, क्या लिखूं? d minus d bracket d minus 1 y. y, ओके, बस डबल ही चाहिए था, डबल तक है। अब ये सब सब्स्टिट्यूट करना है किसमें? इक्वेशन में जो दिया हुआ है। सो यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन given equation is reduced to, किसमें रिड्यूस हो रहा है? अब लिखते जाना है, पहले में क्या है? सेकंड वाला ऑर्डर है, सो d माइनस 1 y, सेकेंड ऑर्डर कॉम्बिनेशन है ना फर्स्ट, तो d माइनस 1 y प्लस x dy by dx dy, फर्स्ट वाले में dy होता है ना, सो dy, सो d माइनस 1 y dy
plus y equals to right hand side log x. So log x equals to t. So t and sin log x, that is sin t. This is right hand side, this is left hand side. अब यहाँ पर x के जगह t आ गया, which is linear differential equation with constant coefficient. ये कन्वर्ट हो गया. अब इसको सॉल्व करना है, t के फॉर्म में आंसर आएगा. फाइनली t के प्लस पे क्या रखना है, log x. ओके, सो सॉल्व इट. कैसे होगा सॉल्व बताओ. डी स्क्वायर माइनस डी प्लस बी प्लस 1 y इक्वल्स टू टी साइन टी. यही है ना, which is linear differential equation with constant coefficient. Its auxiliary equation is b square plus 1 equals to 0. देखो ये कॉसी लीनियर इक्वेशन जो है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया. दोनों जगह पे वैल्यू रख दिया. ये d माइनस 1 मीन्स डी स्क्वायर माइनस डी, यहाँ का पार्ट है, यहाँ से d आया, यहाँ से 1 आया, तो d माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया. डी स्क्वायर प्लस 1, सो डी स्क्वायर प्लस 1, ये एफ डी. तो डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. तो इट्स रूट्स आर, क्या होगा d की वैल्यू बताओ. अब ये कॉसी कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला है ना, इसको तो CF प्लस PI करना है, तो CF निकाल रहे हो. ये क्या है, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू व्हाट. हेलो बताओ क्या होगा. d इक्वल्स टू क्या रूट आ रहा है, प्लस माइनस आई. प्लस माइनस i, प्लस माइनस i. ओके, देयरफॉर CF यू कैन राइट CF इक्वल्स टू क्या होगा, देयरफॉर CF C1 कांस्टेंट एंड अल्फा 0 है, बीटा 1 है, तो C1 cos x प्लस C2 sin x. नो नॉट x, क्या आना है यहाँ पर t के फॉर्म में है ना. हेलो, t के फॉर्म में. अब t को फिर वो बनाना है क्या, x में. सो t के प्लस पे क्या लिखना है, log x. सो दिस इज इक्वल्स टू C1 cos log x plus C2 sin log x. This CF equals to C1 cos log x plus C2 log sin log x. This is CF. अब निकालना है PI, बिकॉज सॉल्यूशन निकालना है. ये बन गया कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला, CF निकल गया. अब PI निकालना है. PI के लिए क्या होता है, 1/FD x. Now new x is what, this t sin t, और fd d स्क्वायर प्लस 1. d स्क्वायर प्लस 1 ही बच रहा था यहाँ पर. fd मीन्स d स्क्वायर प्लस 1. नाउ PI निकालना है मेन अभी, है ना. उसके बाद सॉल्यूशन आ जाएगा. Now PI equals to 1/FD x. FD means what यहाँ, d स्क्वायर प्लस 1, x means t sin t. t sin t था, t sin t. ओके, दिस. अब तुम लोग बताओ, पुराना कुछ मेथड है याद है, इसके लिए कौन सा मेथड है, पढ़े नहीं थे इसको, अब अभी बता रहा हूँ कौन सा मेथड यूज करना है ना. कौन कौन सा फॉर्मेट था जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें, फॉर्मूला. हेलो, कौन कौन सा फॉर्मूला था, एक e⁴x था, एक sin x प्लस b था, और क्या था, e⁴x इंटू b था. ये था ना, यही वाला फॉर्मेट अभी यूज करना है यहाँ पर. बट देखो, ना तो इस फॉर्मेट में है ना इस फॉर्मेट में है, बिकॉज x इंटू साइन एक्स इस फॉर्मेट का दिया हुआ है.
x इंटू साइन एक्स। अब ये पूरा ही तो x का फंक्शन है, इसको निकालने के लिए एक बुक में जितने सारे क्वेश्चन है ना सॉल्व करना उसमें दिखेगा, वो तो इम्पोर्टेंट भी है, शॉर्ट में भी सॉल्व होता है। x साइन एक्स हो चाहे x कॉस एक्स हो, चाहे एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो, मतलब एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो या एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो या एक्स क्यूब हो, ऐसे वाले फॉर्मेट में ना यू नो दिस फॉर्मूला व्हाट इज दिस e टू द पावर आई थीटा, इसकी वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, सबको मालूम है? हेलो, Yes sir. इस फॉर्मूला का नाम है यूलर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ये देखो e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मीन्स ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का कॉम्बिनेशन है, इसका ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, मीन्स इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब देखो यहाँ पर इसके लिए अगर सॉल्व करना चाहें हम लोग साइन एक्स, एक्स साइन एक्स के लिए, ओके, सो यहाँ पर एक टेक्निक क्या कर सकते हैं, सो ये जो एक्स साइन एक्स कैसे मिलेगा, एक्स कॉस एक्स कैसे मिलेगा, एक्स ई टू द पावर आई एक्स, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू ये x का इंटू है, x है तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, x क्यूब है तो x क्यूब, ऐसा ले सकते हैं। तो x e टू द पावर आई x, सो x की वैल्यू x हो गया, e टू द पावर x की वैल्यू cos x प्लस i sin x। अब देखो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, हो गया ना ये वाला पार्ट, क्योंकि x का इंटू हो गया x sin x, इमेजिनरी पार्ट हो गया x cos x, रियल पार्ट हो गया। जब हम इसके लिए सॉल्व कर, इसकी वैल्यू जब निकालना है तो हमको रियल पार्ट लेना पड़ेगा, ऐसा लिख देंगे हम, इसको लिखने के जगह पे इसको लिखने के जगह पे इसको लिख देंगे और बोल देंगे कि रियल पार्ट ऑफ दिस, रियल पार्ट इतनी है। अगर साइन वाला चाहिए तो इसके जगह पे हम ये लिख देंगे और क्या बोल देंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में एक साइन एक्स आता है। क्लियर हुआ? हेलो, Yes sir. हाँ, ये फॉर्मूला यहाँ यूज होता है। सो इस फॉर्मूला से इस टाइप का पी आई, यू कैन फाइंड पी आई ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, सो यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो सी हमारा फॉर्मूला तो वही यूज होगा, देखो कौन सा, e टू द पावर x, ये x प्लस इंटू v, ये जो होता है ना e टू द पावर x इंटू v, इसमें क्या हो जाता है e टू द पावर x बाहर आ जाता है और d में a प्लस हो जाता है और सामने v रहता है, यही होता है। और अपने इसमें क्या हो जाएगा, आई के जगह पे ए के जगह पे आई आ जाएगा। अब ये से t sin t है, मतलब x sin x है, सो वी कैन राइट इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ t e टू द पावर आई टी। क्लियर है? इसका इमेजिनरी पार्ट होगा ना ये, हेलो, अब समझ में आया? हेलो, बताओ। रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है भाई, बताओ। Yes sir. मैं जो लिखा हूं अभी, इसके लिए जो थ्योरी दिया था अभी, वो समझ में आया कि नहीं? आ गया सर, थीटा का आगे ये जो फॉर्मेट लिखा हूं अभी, ये फॉर्मेट वी कैन राइट ना, यस ये यस, ओके, बिकॉज देखो इमेजिनरी पार्ट निकालोगे तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकालोगे तो यही मिलेगा। सो आई पी ऑफ दिस, नाउ यू कैन सॉल्व इट। अब बताओ, समझ में आया ना? अब बताओ क्या करना है। अब ये तो आई पी ऑफ हमेशा लिखा रहेगा, लास्ट में इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, इसको सॉल्व करना है।
अब वही फॉर्मूला e टू द पावर at e टू द पावर x v। सो क्या होता है इसमें पी आई ऑफ, क्या होता है वो वाला फॉर्मूला में e टू द पावर i t बाहर आ जाता है और वहां कौन, देखो तुम्ही लोग बताओगे कुछ तब आगे बढ़ूंगा। बताओ फॉर्मूला याद है, e टू द पावर x इंटू v, e टू द पावर x को बाहर लिख देते हैं और 1/f d में क्या होता है d plus 1 a प्लस a। तो यहाँ पर d प्लस क्या होगा i होगा, d की जगह d प्लस I i आएगा। सो d प्लस i स्क्वायर प्लस 1 ये होना है। ओके ना, अब सिंपली सॉल्व हो जाएगा, अब बिल्कुल सिंपल सॉल्व हो जाएगा ना। जब यहाँ पर x टू द पावर m वाला टाइप का होता है तो इसको बाइनोमियल थ्योरम बना के ऊपर ले जाते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं और फिर 1 पावर तक लेना पड़ेगा क्योंकि ओनली t है, x है, मतलब x टू द पावर m रहता है तो ऊपर नीचे बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंड करते हैं, वही करना है यहाँ पर भी। ओके सो दिस इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ऑलवेज लिखा रहना है, लास्ट में इमेजिनरी पार्ट को ले लेते हैं। सो सी, इसको थोड़ा सा सीरियसली करना है क्योंकि कहीं गलत ना हो। ओके सो e टू द पावर i t तो बाहर आ गया इंटू d प्लस आई स्क्वायर, इसको शॉर्टकट में कर लेते हैं, क्या होगा d स्क्वायर प्लस 2id प्लस आई स्क्वायर मीन्स -1 प्लस 1 a कैंसिल, a प्लस b होल स्क्वायर, आई स्क्वायर मीन्स -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस 2id, so 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 2id और सामने है t, दिस इज इक्वल्स टू ip ऑफ, अब टारगेट क्या हुआ, यहाँ पर t है तो इसको बाइनोमियल थ्योरम बनाना है तो 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग ऐसा लिखना पड़ेगा। तो 1 प्लस करना है तो ये जो 2id को कॉमन लेना है, क्लियर है। 2id को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2id को कॉमन ले लेंगे तो e टू द पावर it अपॉन 2id को कॉमन लिया, सो नीचे क्या बना 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2id d बाई 2i, 1 प्लस d बाई 2i, नीचे है ऊपर गया इनवर्स हुआ, सामने t, क्लियर। हेलो yes sir अब क्या लिखना है, ये है ना नीचे जो बना था 1 प्लस डी, एक डी कैंसिल हुआ, d अपॉन 2i का इनवर्स हो गया, प्लस में है यहाँ पर ना। i को हमेशा नीचे नहीं रखना चाहिए, ऊपर लेना है, तो एक i का ऊपर नीचे इंटू करके ना इसको, एक i का नीचे इंटू करो, एक i का ऊपर इंटू करो, तो i अपॉन आई स्क्वायर मीन्स माइनस, तो माइनस id बाई 2 और साथ में यहां भी एक i है, i नीचे नहीं रखना चाहिए, i को अगर नीचे एक i है तो ऊपर नीचे i का इंटू करो, नीचे आई स्क्वायर माइनस हो जाता है और ऊपर i आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस i बाई 2 e टू द पावर it, माइनस i बाई 2, एक i का ऊपर नीचे इंटू किया, माइनस आ गया i e टू द पावर it बाई 2, दिस नाउ हियर 1 माइनस id बाई 2 इनवर्स t, क्लियर है। नीचे के i को खत्म किया, एक एक माइनस साइन लाया, ऊपर एक एक i आ गया, बस ये। ओके आफ्टर दिस लाइन बस 2-3 लाइन और बचा है, खत्म हो जाएगा अभी, है ना। सो सी हियर, सीरियसली देखना है इसको, है ना। पी आई इक्वल्स टू पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू आई पी ऑफ, अब देखो क्या होना है, माइनस आई बाई 2 e टू द पावर i t, माइनस आई बाई 2 e टू द पावर i t। फाइनली क्या करना है, ये जो क्वांटिटी है इस पूरे क्वांटिटी को रियल प्लस इमेजिनरी में लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को ले लेना है, दैट इज द आंसर। सो माइनस आई बाई 2 e टू द पावर i t ये हो गया। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होना है,
1 माइनस यहाँ माइनस 1 प्लस 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 एंड सो ऑन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, बट यहाँ पर t का पावर सिंगल 1 है तो केवल d का पावर 1 तक सफिशिएंट है. सो वी कैन राइट व्हाट 1 प्लस id बाई 2 प्लस एंड सो ऑन. आगे लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड ऑर्डर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, अगर इसका स्क्वायर लोगे तो डी स्क्वायर आएगा. डी स्क्वायर का जैसे करोगे डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स 0 हो जाएगा. सो 1 टाइम्स सफिशिएंट, यहाँ लिख के छोड़ देना. ओके, नाउ क्या हो गया बताओ. आई पी ऑफ माइनस आई बाई 2 ई टू द पावर आई टी एंड आंसर यहाँ क्या आना है टी प्लस क्या लिखो यहाँ पर बताओ, अभी तुम ही लोग बताओ. क्या होना है, टी को इसमें अप्लाई कर देना. यहाँ टी आएगा, यहाँ पर आई डी बाई 2 टी, सामने टी का एक बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी आई बाई, क्योंकि डी टी मतलब 1 हो जाएगा तो आई बाई 2. अब ये वाले क्वांटिटी को इनटू करो अभी. ओके, आई पी ऑफ माइनस आई बाई 2 को अंदर कर दे रहा हूं, ई टू द पावर आई टी को यही रहने देता हूं, माइनस आई बाई 2 को अंदर कर दे रहा हूं, है ना. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक इसमें कुछ छूट गया लग रहा है, एक डी भी था ना नीचे. हेलो, इसके साथ में 2i के साथ एक डी भी था ना, याद करो एक डी था कि नहीं. हाँ, वो देखना है ना, एक डी था इसमें, इसके आगे एक डी था. ओके, यहाँ पर लो, इसके आगे एक डी है, 1 बाई डी एंड यहाँ पर क्या बना था t प्लस आई बाई 2. ये एक डी था, वो भूल गए थे क्योंकि 2id कॉमन लिया था. 1 बाई डी, 1 डी इज देयर. सो आई पी ऑफ, अब बस उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सॉल्व कर देते हैं ना. आई बाई 2 ई टू द पावर आई टी, डी मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन होगा. 1 बाई डी में इंटीग्रेशन होना है, इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, बी मतलब डिवाइड डी टी ना. सो 1 बाई डी मीन्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 एंड आई बाई 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन टी, सो आई टी बाई 2 ये होना है. अब इसको इनटू कर देते हैं. आई पी ऑफ माइनस आई बाई 2 को अंदर ले जाओ, ई टू द पावर आई टी माइनस आई बाई 2, सो माइनस आई टी स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी, ये जो है माइनस माइनस होना है और आई इंटू होकर क्या हो जाना है आई स्क्वायर हो जाना है, वो भी माइनस हो जाना है. तो माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस हो जाना है. सो प्लस, सो माइनस आई टी स्क्वायर बाई 4 ये हो गया, माइनस आई यहाँ गया तो प्लस हो गया, साथ में t बाई 2 प्लस t बाई 2. अब इसको ब्रेक करते हैं, e टू द पावर आई टी जो होता है उसको लिख देते हैं. अभी फिर से क्या होना है, आई पी ऑफ cos t प्लस आई साइन टी, ये तो किसकी वैल्यू है e टू द पावर आई टी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, और साथ में ये वैल्यू भी है इनटू, साथ में इनटू ये भी माइनस आई टी स्क्वायर बाई 4, यहां भी 4 आएगा बिकॉज 2 गया ना इनटू में 4, सो प्लस टी बाई 4 प्लस टी बाई 4. नाउ ये जो प्रोडक्ट करेंगे, इस प्रोडक्ट करने से जो रियल पार्ट होगा वो नहीं लेना है, लेना है इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट लेंगे तो किसका मिलेगा टी कॉस टी का मिलेगा, और इमेजिनरी पार्ट लेंगे किसका मिलेगा टी साइन टी का मिलेगा. सो हमको इमेजिनरी पार्ट लेना है, इन दोनों को इनटू करो, इमेजिनरी पार्ट को बताओ क्या होगा, आई से रिलेटेड वाला बताना है ना. आई से रिलेटेड पार्ट क्या होगा, जब इस कॉस का देखो, जब इस कॉस का इससे इंटू होगा
इस कॉस टी का जब इससे इंटू होगा तो आई रहेगा माइनस टी स्क्वायर कॉस टी बाई 4 माइनस टी स्क्वायर कॉस टी बाई 4। जब इस कॉस टी का इंटू हो रहा है इसके साथ तो आई वाला पार्ट है, आई है कॉस टी स्क्वायर बाई 4 माइनस के साथ। अब जब इसका इसमें इंटू होगा तो नहीं रहेगा आई, सो नहीं लेना वो पार्ट। अब इसको जब इससे इंटू करोगे आई स्क्वायर होके खत्म हो जाएगा तो वो नहीं लेना है। जब इसको इससे इंटू करोगे तो आई मिलेगा, तो टी साइन टी बाई 4, टी साइन टी बाई 4। सो दिस इज आवर पी आई। ओके, ये इमेजिनरी पार्ट ले लिया। दिस इज पी आई, दिस इज सी ए। सो फाइनली यू कैन राइट सॉल्यूशन। अभी टी को फिर बदलना भी है ना, टी के जगह पे कुछ और लिखना है। क्या होगा टी के जगह पे? टी मीन्स log x था ना, सो माइनस 1/4 कॉमन है, सी हियर माइनस 1/4 कॉमन ले लेते हैं, टी साइन टी। टी मीन्स log x sin log x, log x sin log x प्लस यहां पर वो वैल्यू लिख देना है, अब तो क्लियर दिख ही रहा है, माइनस टी स्क्वायर कॉस टी मीन्स माइनस log x स्क्वायर cos of log x. Okay, so this is the value. Hence, the complete solution of given equation is y equals to ca plus pi implies solution नंबर रहता है ना, ये वो लिखना है, ये वो लिखा था, ये c1 cos log x प्लस c2 sin log x, और जो pi आया वो पूरा लिख देना है प्लस 1/4 and total value you have to write. Okay, so log x sin log x. क्यों सभी ने अच्छे से ध्यान दिया था ना इसमें? कहीं कुछ मिस्टेक हुआ क्या? हेलो, उस समय देखो डी को छोड़ दिया था ना हम लोग, कुछ है मिस्टेक? आंसर देख रहा हूं, एक मिनट। So it's माइनस 1/4, यहाँ पर माइनस साइन होगा ना, यहाँ पर माइनस साइन होगा ना, यस सर, माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन। सो माइनस 1/4 log x स्क्वायर, माइनस 1/4 log x स्क्वायर cos log x, ओके, प्लस 1/4 log x sin log x एंड c1 cos log x, c2 sin log x, राइट, ये आंसर। ओके, CF एंड PI दोनों निकालना है। सो ये क्या किया था, पहले कॉची लीनियर इक्वेशन था, उसको कन्वर्ट किया था किसमें, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, और जो पुराना मेथड है उससे CF निकाला पहले, फिर PI निकाला। PI में एक न्यू टेक्निक समझ में आया आज, बाकी पुराना टेक्निक तो है। सो वो x sin x, x cos x, तो उसको e⁻x करके उसका इमेजिनरी या तो रियल पार्ट लेना है, उसी से सॉल्व किया तो ये PI आया और CF और PI को प्लस कर दिया। दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है? तो अभी क्या करें, अभी बंद करें ना क्लास आज? हेलो, यस सर, क्योंकि वो टाइम भी हो गया ना। ओके, आज क्या है